دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، ہوا بند تھی، گرمی کی تیزی سے ہر جاندار بوکھلایا ہوا تھا۔ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاگ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر آپ کے پاس آ گئیں۔ بولی ابا، آپ معمول کے خلاف کیوں اٹھ بیٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا لیا، پھر بتایا بیٹی آج مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں رات کو کسی وقت یثرب چلا جاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی معصوم نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بولی ابا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تم کو نہیں لے جا سکتا، تم کو بعد میں بلایا جائے گا۔ بولی اچھا ابا جان، مجھے جلد ہی بلائیے گا، آپ کی یاد میں بے قرار رہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے فرمایا بہت جلد بلاؤں گا، گھبرانا مت۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر آئے اور دھوپ کی تیزی کے باوجود آنکھیں نیچی کیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، سلام کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے کہا کیا ہجرت کا حکم ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، تمہارا خیال بالکل صحیح ہے، مگر یہاں اس قسم کی باتیں مناسب نہیں ہیں، یہاں تمہاری لڑکیاں بھی ہیں، چلو اندر تنہائی میں باتیں کریں گے۔ پھر دونوں مکان کے بھیتر جا کر کھجور کی چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ رات مکہ کے قریش نے یہ تجویز کیا ہے کہ وہ آج رات میرے مکان کا گھیراؤ کر لے اور جب میں مکان سے باہر نکلوں تو مجھے فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے سرخ ہو گئے، بولے بدماش اتنے دلیر ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں رات ہی کو ان کے بیچ سے ہو کر نکلوں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ اپنے چنے بندوں کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ تو بتائیے آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، بولے خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے میری تمنا پوری کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خرید کر ببول کے جنگل میں چھوڑ دی تھی، وہ کھا پی کر موٹی ہو گئی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی آپ کی نظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بولے ابو بکر تمہارا شکریہ، میں جانتا ہوں کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے کتنا لگاؤ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لو۔ قیمت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اونٹنی آپ کے لیے خریدی تھی، جانتا تھا کہ اچانک ہجرت کا حکم ہوگا، سواری بھی ضروری ہوگی، اس لیے اس وقت اپنی طرف سے آپ کو یہ اونٹنی نذر کروں گا۔ اب آپ ہیں کہ قیمت دینے پر اصرار کر رہے ہیں، بتائیے قیمت کیسے لوں؟ میں خوشی سے قیمت دے رہا ہوں، تم بھی خوشی سے قبول کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میری تمام خوشیوں پر نچھاور ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں دل و جان سے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کرنے کے بعد فرمایا ہمیں آج ہی رات میں چلنا ہوگا، اس لیے تیاریاں کر لینا، ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے، رہبر کو آج ساتھ لینا، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے رہبر کا پہلے ہی سے خیال تھا، اس لیے میں نے عبداللہ بن ارکت کو اس کام کے لیے تیار کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیکن وہ تو مشرک ہے، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بے شک وہ مشرک ہے، لیکن عرب ہونے کے ناطے وہ وعدے کا پکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا جب تمہیں اعتماد ہے تو میرے اعتماد نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب میں جا رہا ہوں، تم خفیہ طریقے سے تمام تیاریاں رات سے پہلے پوری کر لو، میں پوری رازداری سے کام کروں گا،
आप बेफिक्र और मुतमईन रहें। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, रात को सो न जाना, न जाने किस वक्त आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते चलते फरमाया, चाहे जब तशरीफ़ लाइए, मुझे इंतजार करता ही पाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उस चिलचिलाती धूप में सर पर चादर रखे अपने मकान की ओर चल पड़े। फिर सारा दिन आप मकान ही पर रहे, बाहर ना निकले। दिन गुजर गया, शाम हुई, रात में ईशा की नमाज से फारिग भी हो गए। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। उन्होंने सलाम किया, आपने दुआ दी और फरमाया, अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए हो, आओ बैठो। हजरत अली करीब ही बैठ गए। फिर एक सवाल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज काफिरों और मुशरिकों ने हमारे घर को घेर लिया है, ये नई बात क्यों है? फरमाया, चचा के बेटे, इन्होंने आज मेरे कत्ल की साजिश की है। ये चाहते हैं कि इस तरह हम इस्लाम को मिटा देंगे। ये बेवकूफ़ हैं, इतना भी नहीं समझते कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, मगर आपने बाहर निकल कर नहीं देखा, सैकड़ों बदमाश तलवार लिए मकान के चारों तरफ खड़े हैं। मुझे डर है कि कहीं वे अपने इरादे में कामयाब न हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खौफ न करो, इत्मीनान रखो, अल्लाह मुझे उनकी शरारत से बचाए रखेगा। अगर मैं आज कत्ल हो जाने वाला होता तो मुझे हिजरत का हुक्म न होता। मैं मुतमईन हूँ कि खुदा मेरी हिफाजत करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप कब हिजरत करेंगे? आज ही नहीं बल्कि इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा। रात को तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना। क्या आप मुझे अपने साथ न ले जाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, नहीं, इसलिए कि कुफ्फार की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं। तुम सुबह तमाम अमानतें उनके मालिकों के सुपुर्द करके यसरब आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यसरब तशरीफ ले जाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, हाँ, मुझे यसरब ही जाने का हुक्म हुआ है। तन्हा तशरीफ ले जाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, नहीं, मेरे सफ़र के साथी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कहा, अब तुम आराम से मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर लेट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमानतों की फहरिस्त दी और खुद मुसल्ले से उठकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो गई थी। आपने थोड़ी देर खड़े होकर मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखा और चुपके से फरमाया, मेरी मासूम बेटी, मेरी नूरे नजर, अलविदा। अपने बाप से मोहब्बत करने वाली बेटी, बाप पर कुफ्फार के जुल्मों को देखकर रोने वाली बेटी, रुखसत। मैं तुझे आज खुदा के सुपुर्द करता हूँ, उस खुदा के जो पूरे कायनात का निगहबान है। वही तेरी हिफाजत करेगा और ऐ मेरी मोहब्बत की दुनिया, वही फिर तुझसे मुझको मिलाएगा। ये कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होकर दरवाजे पर आए। दरवाजे से झांक कर देखा तो देखा कि अनगिनत कुफ्फार नंगी तलवारें लिए दरवाजे के सामने निहायत मुस्तैदी से खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। चूंकि रात अंधेरी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और सूरह यासीन की शुरू की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक पर दम किया और खाक कुफ्फार की तरफ फेंकी। अगरचे ये खाक मुट्ठी भर थी, मगर हवा ने उसको चारों तरफ फैला दिया। ऐसा फैलाया कि आंखों पर पर्दा पड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर मकान से बाहर निकले और कुफ्फार के सामने से गुजर गए और किसी की नजर न पड़ी और सब के सब जहां और जिस हालत में खड़े थे उसी तरह खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत इत्मीनान से चलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर पहुंचे। धीरे से दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाजा खुला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दोनों ऊँटनियाँ और रहबर को लेकर अभी हाजिर होता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी ना ऊँटनियों की जरूरत है और ना रहबर की। मैंने रास्ते में देखा है कि कुफ्फारे कुरैश जगह जगह खड़े निगरानी कर रहे हैं। अगर हम ऊँटों पर सवार होकर चलेंगे
तो वे जान जाएंगे कि हम जा रहे हैं। मुनासिब ये मालूम होता है कि हम दोनों तन्हा चलें, जैसी आपकी मर्जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या मैं अब्दुल्लाह से कह आऊं कि वो ऊँटनियों को लेकर मक्के से बाहर आ जाए? इसकी भी अभी जरूरत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अभी ये तय किया है कि मक्का के नसेब में जो पहाड़ है जिसे कोहे शौर कहते हैं, उसके किसी गार में छिप रहेंगे। कुफ्फार ढूंढते ढूंढते जब अपने घरों में थक कर बैठ जाएंगे तो फिर हम वहां से निकलेंगे और यसरब का रास्ता तय कर लेंगे। बड़ी अच्छी तजवीज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक गारे शौर में ठहरना पड़े, इसलिए आपकी मनसा हो तो मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह को हिदायत कराऊं कि वो रात को खाना लेकर कोहे शौर पर आ जाया करे और साथ ही दिन भर की खबरें भी हमको सुना जाया करे। निहायत मुनासिब तजवीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अपने गुलाम आमिर बिन फहरा से कह दूं कि वो बकरियों का रेबड़ कोहे शौर के करीब ही चराया करे, ताकि ज़रूरत के वक्त हम दूध भी पी लिया करें। और अब्दुल्लाह और मेरी बेटी अस्मा जो वापस जाया करेंगे तो उनके कदमों के निशान और बकरियों के रेबड़ के चलने से मिट जाया करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी राय रखी। ये राय भी बहुत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान के भीतर गए। उनके वालिद अबू कहाफा जाग रहे थे, वो अंधे थे। उन्होंने कदमों की चाप सुनकर कहा, ये मकान के आंगन में कौन फिर रहा है? अबू कहाफा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि उन्हें भी उनकी हिजरत का इल्म न हो, पर उनके टोकने पर आपको बताना ही पड़ा। आप उनके पास गए और धीरे से बोले, मैं हूँ अबू बकर। पूछा, तुम आधी रात को सहन में क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, प्यारे बाप, आज मैं यहाँ से हिजरत कर रहा हूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हो? उन्होंने पूछा, जी हाँ। अच्छा जाओ, लेकिन शायद मक्के वाले तुमको जाने ना देंगे। अबू कहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोश में आकर कहा, उनकी मजाल नहीं जो रोक सके। नरमी से अबू कहाफा ने समझाया, प्यारे बेटे, मक्का वालों से लड़ न पड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जहाँ तक मुमकिन होगा नहीं लड़ेंगे। अबू कहाफा ने दुम्बा देकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को विदा किया। आप बढ़कर वहां पहुंचे जहां आपके बेटे अब्दुल्लाह और आपकी बेटी अस्मा और आपके गुलाम आमिर बैठे जाग रहे थे। ये तीनों मुसलमान हो चुके थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह से मुखातब होकर कहा, हमारे बेटे हम कोहे सौर पर जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। तुम कुफ्फार से मिलकर उनके इरादों की रात में जाकर इत्तला दे आया करना। और मेरी बेटी अस्मा, तुम रोजाना खाना पकाकर अपने भाई अब्दुल्ला के साथ ले आया करना। और आमिर, तुम रोजाना आधी रात तक कोहे सौर पर बकरियां चराने लाया करना। और जिस तरह से अब्दुल्लाह और अस्मा आए या जाएं, उसी तरह बकरियों को ले आया करना, ताकि उनके कदमों के निशान मिट जाया करें। तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया। उन्हें हिदायत करके हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आपने पूछा, क्या सब लोग जाग रहे थे जो तुम इतनी जल्दी हिदायत करके चले आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, तमाम लोग जाग रहे थे। मैंने सबको उनकी जिम्मेदारियां बता और समझा दी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ चलो। दोनों रात के अंधेरे में गुम हो गए। खाना काबा पहुंचकर उसका तवाफ किया। जब मक्का के आखिरी हिस्से को तय करने लगे तो आपने पलट कर देखा और कहा, अय मक्का शहर, तू मुझे बहुत महबूब है, लेकिन अफसोस है कि मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूँ। तेरे बेटों ने मुझे इस जगह न रहने दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मक्का से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कि ये मेरा वतन है, बल्कि इसलिए कि इसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया है और यहाँ अल्लाह का पसंदीदा घर है। क्या इस शहर में हम फिर दाखिल ना हो सकेंगे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, जरूर दाखिल होंगे, पर उस वक्त जबकि ये मक्का खुदा परस्तों का घर बन जाएगा। जब तो कुछ फिक्र नहीं, तब तो हमारी औलाद ही यहाँ आकर आराम करेगी। तुम रहोगे ना मैं रहूँगा, ना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रहेंगे, ना उमर रहेंगे, ना उस्मान रहेंगे, कोई ना रहेगा। हम यसरब में रहेंगे और वहीं मरेंगे। अलबत्ता हज करने के लिए यहाँ आते रहेंगे।
जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे हम सब वहीं रहेंगे। हमको वो जगह बहिश्त से बढ़कर अजीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब ये दोनों मक्का से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए थे। हर ओर अंधेरा फैला हुआ था। अगरचे सितारे चमक चमक कर अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरा कहाँ दूर होता था। थोड़ी दूर चलकर दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें।